اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے اس بات کی مخالفت کی گئی تھی کہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر ضمانت دی جائے، کیونکہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ موقف تھا کہ ان کا ہر علاج حراست میں بھی ہو سکتا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ اویس، بتائیے گا اس فیصلے کے بارے میں۔ جی بالکل، سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر جو درخواست ضمانت کا جس کا فیصلہ آج آنا تھا، ڈویژنل بینچ نے فیصلہ سنا دیا اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جو ضمانت طبی بنیادوں پر ضمانت تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد عدالت کے جج جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے میں فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے جو سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جو درخواست ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، درخواست سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دائر کی گئی تھی کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کا پراپر علاج نہیں ہو پا رہا، اس لیے ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا پائیں۔ اس کا فیصلہ جو تھا فیس 20 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سناتے ہوئے درخواست جو ضمانت تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ آرڈر یہ جاری کیا گیا ہے کہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے، تفصیلی فیصلہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے اور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن اب کیونکہ درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر بڑی تعداد میں لیگی کارکنان بھی اس وقت موجود ہیں جو کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، جبکہ جو لیگی رہنما ہیں وہ فیصلہ سننے کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں اور اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مین گیٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ممکنہ صورتحال پیدا ہونے کے لیے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات صبح سے تعینات تھی اور مزید نفری بھی یہاں پر طلب کر لی گئی ہے۔ تاہم جو لیگی کارکنان ہیں وہ اس ٹائم کمرہ عدالت کے باہر ہاتھہ عدالت اور عدالت کے مین گیٹ کے باہر بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں جو کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے حق میں اس وقت نعرے بازی کی جا رہی ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اویس، آپ نے بتایا کہ لیگی رہنما کمرہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں، کیا ان میں سے کسی نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور آج کے اس ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کیا؟ تعداد میں لیگی رہنما جو تھے، جس میں سینیٹر مشاہد اللہ، سابق وزیراعظم شیخ خاقان عباسی، مریم اورنگزیب اور دیگر جو لیگی رہنما تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور صبح سے یہاں پر فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا تو لیگی رہنما کمرہ عدالت سے باہر آئے ہیں، تاہم انہوں نے ابھی میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا رد عمل ضرور دیں گے، میڈیا سے بات کریں گے اس وقت، کیونکہ لیگی جو کارکنان ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور لیگی کارکنان نے جو لیگی قیادت ہے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اس حوالے سے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ تاہم لیگی رہنما جو ہے اس وقت کمرہ عدالت اور ہاتھہ عدالت میں اس وقت موجود ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا رد عمل دیتے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ جی اچھا اویس، یہ بتائیے گا کہ ضمانت کے متعلق فیصلہ کب محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ضمانت کی جب درخواست دائر کی گئی تھی تو دونوں جانب سے مختصراً کیا دلائل سامنے آئے؟ جی بالکل، ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور 20 فروری کو ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا اور درخواست یہ دائر کی گئی تھی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، وہ اپنی مرضی سے علاج نہیں کروا پا رہے، ان کی ایک میڈیکل ہسٹری موجود ہے، اس بیس پر ان کو ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے، لیکن جو نیب تھی اس نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کورٹ لکھپت جیل میں تمام تر جو سہولیات ہیں وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو دی جا رہی ہیں، لیکن اس بات پہ خواجہ حارث نے یہ عدالت کو بتایا تھا کہ جہاں پر بھی نواز شریف کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور سب جیل میں ایک ہی علاج ایک وقت میں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں تو ان کو دل کا علاج ہوگا، لیکن ان کو دیگر جو ڈیزیزز ہیں اس کے لیے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے دوبارہ آرڈرز لینے پڑتے ہیں جس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے علاج نہیں کروا پا رہے، اس بیس پہ یہ درخواست مسترد کی جائے۔ لیکن قانونی ماہرین کے مطابق خواجہ حارث جو تھے وہ تو کنونس کر پائے تھے عدالت کو، مکمل طور پر اپنے دلائل انہوں نے مکمل کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد عدالت کی صوابدید تھی کہ آیا کہ وہ درخواست آج مسترد کرتی ہے یا منظور کرتی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ڈویژنل بینچ تھا جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق
फारूक पर मुश्तमिल था, जिसने फैसला महफूज किया था। अब से कुछ देर कब जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जी अवैस, ये भी बताइएगा कि कॉज लिस्ट के जरिए कब नोटिफाई किया गया था कि ये फैसला आज सुनाया जाएगा नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, 2 दिन कबल कॉज लिस्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 25 फरवरी को डिवीजनल बेंच 12 बजे इस फैसले को सुनाएगा, लेकिन लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और 12 बजे से जजेस के बैठने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जजेस कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, चैम्बर्स में मौजूद थे। अब से कुछ देर कब जब जजेस कमरा अदालत में आए तो पहला केस ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही कॉल किया गया और जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए जो जमानत थी, दरखास्त जमानत जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से आज सुबह ही सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी थी फैसले को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से सुबह रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन बाद अज़ां पुलिस की इजाफी नफरी लगा दी गई थी, क्योंकि जो लीगी कारकुनान है उनकी कोशिश होती है कि वो इज़हार यकजहती के लिए कमरे अदालत तक पहुंच सके, लेकिन कारकुनान को इजाजत नहीं दी जाती और मेन जो गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन पर ही रोक दिया जाता है, जिस पर लीगी कारकुनान कोशिश करते हैं कि वो कमरे अदालत तक पहुंच पाएं। अवैस, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जावेद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, किस तरह से रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के सियासी हलकों में इस खबर को? देखें अवैस, जो बुनियाद बनाई गई थी इस जमानत के लिए वो मुस्तरद की गई है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देखें नवाज शरीफ का जो इलाज है वो तो हो रहा है, वो जेल की बजाय अस्पताल में है, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है और सारी सहूलतें भी उन्हें मिल रही हैं, तो इसलिए जो तिब्बी बुनियादों पर जो उनका एक दरखास्त थी कि दरखास्त जमानत थी वो मुस्तरद की गई है। अब यहाँ पर नैब की भी जो है वो जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी भी जो वकला पेश हुए थे उनके दलाइल भी सुने गए थे। जाहिर बात है कोर्ट ने जो है दोनों तरफ के दलाइल सुन के फैसला दिया है और इस फैसला के बाद अब सूरत जारी बात है हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ हल्कों से नून लीग के, वो यही फैसला कर रहे हैं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट अभी जाए और उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी ये फैसला तफसीली फैसला हमारे पास आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं वैसे और क्या क्या नहीं शामिल की गई, किस बुनियाद पर और किस तरीके से ये फैसला है देखेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। अपडेट करे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी। बहरहाल हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। सवाल अभी मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अपना रद्द-ए-अमल जरूर देंगे, मीडिया से बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि लीगी जो कारकुनान है उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और लीगी कारकुनान ने जो लीगी क़यादत है उसको घेर रखा है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए। ताहम लीगी रहनुमा जो है इस वक्त कमरा अदालत और हाथा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ये अपना रद्द अमल देखते हैं और मीडिया से बात करते हैं या नहीं। जी अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि जमानत के मुतालिक फैसला कब महफूज किया गया था और ये भी बताइएगा कि जमानत की जब दरखास्त दायर की गई थी तो दोनों जानिब से मुख्तसरन क्या दलाइल सामने आए? जी बिल्कुल, जमानत की दरखास्त दायर की गई थी और 20 फरवरी को जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि आज सुनाया गया है। और इस हवाले से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और दरखास्त ये दायर की गई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, वो अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा पा रहे, उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है
उस बेस पर उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन जो नैब थी उसने मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि कोर्ट लखपत जेल में तमाम तर जो सहूलियात हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दी जा रही हैं। लेकिन इस बात पे ख्वाजा हारिस ने ये अदालत को बताया था कि जहां पर भी नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जाता है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और सब जेल में एक ही इलाज एक वक्त में हो सकता है। अगर वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं तो उनको दिल का इलाज होगा, लेकिन उनको दीगर जो डिजीजेस हैं उसके लिए दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए दोबारा ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं जिसमें काफी वक्त दरकार होता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा पा रहे। इस बेस पे ये दरखास्त मुस्तरद की जाए। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ख्वाजा हारिस जो थे वो तो कन्वेंस कर पाए थे अदालत को, मुकम्मल तौर पर अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद अदालत की सवाब दी थी कि आया कि वो दरखास्त आज मुस्तरद करती है या मंजूर करती है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो डिविजनल बेंच था जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल था जिसने फैसला महफूज किया था, अब से कुछ देर कबल जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जी अवैस, ये भी बताइएगा कि कॉज लिस्ट के जरिए कब नोटिफाई किया गया था कि ये फैसला आज सुनाया जाएगा नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, 2 दिन कबल कॉज लिस्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 25 फरवरी को डिविजनल बेंच 12 बजे इस फैसले को सुनाएगा। लेकिन लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और 12 बजे से जजेस के बैठने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जजेस कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, चैम्बर्स में मौजूद थे। अब से कुछ देर कब जब जजेस कमरा अदालत में आए तो पहला केस ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही कॉल किया गया और जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए जो जमानत थी, दरखास्त जमानत जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से आज सुबह ही सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी थी फैसले को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से सुबह रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन बाद अज़ां पुलिस की इजाफी नफरी लगा दी गई थी क्योंकि जो लीगी कारकुनान है उनकी कोशिश होती है कि वो इज़हार यकजहती के लिए कमरे अदालत तक पहुंच सके, लेकिन कारकुनान को इजाजत नहीं दी जाती और मेन जो गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन पर ही रोक दिया जाता है, जिस पर लीगी कारकुनान कोशिश करते हैं कि वो कमरे अदालत तक पहुंच पाएं। अवैस, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जावेद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, किस तरह से रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के सियासी हलकों में इस खबर को? देखें अवैस, जो बुनियाद बनाई की गई थी इस जमानत के लिए वो मुस्तरद की गई है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देखें नवाज शरीफ का जो इलाज है वो तो हो रहा है, वो जेल की बजाय अस्पताल में है, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है और सारी सहूलतें भी उन्हें मिल रही हैं, तो इसलिए जो तिब्बी बुनियादों पर जो उनका एक दरखास्त थी कि दरखास्त जमानत थी वो मुस्तरद की गई है। अब यहाँ पर नैब की भी जो है वो जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी जो वकला पेश हुए थे उनके दलाइल भी सुने गए थे। जाहिर बात है कोर्ट ने जो है दोनों तरफ के दलाइल सुन के फैसला दिया है और इस फैसला के बाद अब सूरत जारी बात है हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ हल्कों से नून लीग के, वो यही फैसला कर रहे हैं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट अभी जाए और उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी ये फैसला तफसीली फैसला हमारे पास आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं वैसे और क्या क्या नहीं शामिल की गई, किस बुनियाद पर और किस तरीके से ये फैसला है देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। अपडेट करे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी। बहरहाल हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। सवाल